In this video, we are discuss class 12th mathematics unit 3rd calculus. Their first topic is the concept of the continuity. मतलब कि continuous function मतलब कोई भी फंक्शन कैसे continuous होगा. The word continuous means without any break or a gap. Roughly speaking, a function f is continuous at a point a if f does not have a break or gap in the value of a. मतलब कि कोई भी गैप नहीं होगा. जैसे कोई भी ग्राफ कर स्केच करते हैं तो एक कंटिन्यूस करेंगे विदाउट एनी गैप. We take consider example. Consider the graph y square is equal to 4ax. A curve. This is a curve and it is not any gap. It is continuous. So this function is a continuous function. We see that for each positive value of x, we get pair of corresponding value of y. It means x की कोई भी किसी भी वैल्यू के लिए y क्या एटलीस्ट 2 वैल्यू मिलेंगे हमको. तो according to Cauchy definition, a function f(x) is said to be continuous at a point x equal क्या है a if the satisfied two condition. एफ ए इज डिफाइंड मतलब उसको डिफाइन किया जो फंक्शन हो क्या एफ ए इज डिफाइंड. सेकेंड, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टू क्या चाहिए एफ ए के इक्वल हो जाना चाहिए. सेकेंड, इक्वेंटली f is continuous at x is equal to a if limit x tends to minus a fx limit x tends to plus a fx and fa. मतलब कि this is the left hand limit, this is the right hand limit and limit at the point all three are equal. So this function is a continuous. Next, a function f is said to be discontinuous at point x equal if f does not continue. मतलब कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो देन वी कैन से दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस at point. In this case, the point x equal a is called a point of discontinuity. So is in this case this point is called the point of discontinuity. Remark. कुछ इसमें remark either of the following cases. मतलब discontinuity of the function f at x obtain either the following cases. Their first case, limit x tends to a fx exists but limit x tends to a fx not equal to fa. मतलब कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है बट दिस वैल्यू नॉट इक्वल टू fa. So this is a not a continuous, this is a discontinuous function. Second thing, limit x tends to a fx does not exist. सेकेंड में क्या है अगर लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे. थर्ड में क्या है f इज नॉट डिफाइंड एट वो फंक्शन क्या हो डिफाइन ना हो. जैसे फंक्शन डिफाइन कब नहीं होता है जैसे इस फॉर्म में अगर आ जाएगा हमारा कोई फंक्शन अगर 0/0 के फॉर्म में है तो इसी इट इज़ नॉट डिफाइंड. इस फॉर्म में आ जाता है तो इट कैन नॉट बी डिफाइंड. या फिर अगर ऐसे आ जाता है हमारा 1/∞ 1 ये सब में क्या होगा दिस नॉट डिफाइंड तो डिफाइंड ही नहीं होगा हमारा. अब आता है नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर इसको क्या कहते हैं फ्लोर फंक्शन. If x belong to real number then square bracket represent the greatest integer which is equal
और लेस देन एक्स, मतलब कि अगर कोई स्क्वायर ब्रैकेट में है वैल्यू तो क्या होता है, रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन एंड विच इज इक्वल आर लेस देन एक्स, दैट इज एफ इफ एक्स इज an integer, then square bracket of x is equal to x. But if x is not in an integer, then the value of x is an integer on the number line विच इज लाई जस्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स, मतलब कि कह सकते हैं अगर एक्स जो है इंटीजर होगा तो उसके इक्वल में ही हो जाएगा हमारा। बट अगर वह इंटीजर नहीं होगा हमारा तो कहाँ पे होगा, तो वह जस्ट लेफ्ट ऑफ द एक्स, उस एक्स के जस्ट लेफ्ट साइड पे इंडिकेट कर जाएगा। सेकेंड, नाउ वी टेक some example. 6 square bracket 6 की वैल्यू क्या होती है, 6 is integer so this is round and 5 minus 5 is integer so this is minus 5 and 0 is also integer so write down 0, but 16 by 3 it is not integer तो 3 5 जा क्या होगा 15 होगा, 3 5 जा 15 तो ये क्या होगा वहाँ पे नंबर लाइन जस्ट बिफोर पहले आ जाएगा, लेफ्ट 5 हो जाएगा। √3 वैल्यू ऑफ √3 क्या होती है हमारी, वैल्यू ऑफ √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होता है। तो इससे क्या होता है एक कुछ कम ही होता है, हमारा जो वैल्यू रहेगी उससे कम लेंगे तो ये 1 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आर सेलिंग फंक्शन, तो इसमें क्या होता है इफ एक्स बिलोंग टू रियल नंबर को देन एक्स इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, and if x is an integer then smallest integer function denoted by the small bracket of x. If x is not integer, then x is equal to that integer on the number line which is just on the right side, मतलब कि if अगर x जो है integer होगा तो small bracket of x equal x, but if x is not integer so on a number line it write just right of the x, जैसे 7 है तो वैल्यू क्या होगी 7 होगी, 19/3 तो 19/3 19 बाई कितना होता है हमारा 18 होगा, बट हमको क्या राइट क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू 7 हो जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू एंड 19/4 तो ये 19 बाई क्या है हमारा ये 9 टू फोर जा ये माइनस नंबर लाइन पे हम देखते हैं तो ये होगा हमारा -1 -2 -3 -4 और -5 होगा। तो 2 4 जा 8 तो 4 और यहाँ पे बीच बीच में आएगा हमारा, यहाँ पे 4 और 5 के बीच में रहेगा तो कहाँ पे मैंने कहा है जस्ट राइट ऑफ द नंबर के राइट पे आ जाएगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। नेक्स्ट algebra of a continuous function. Since f and g are continuous at point किस पे c पे है, जो f and g both are continuous at point c, then limit x tends to c fx क्या होगा c हो जाएगा हमारा, ये fc हो जाएगा हमारा fc एंड लिमिट x टेंस टू c gx क्या हो जाएगा gc हो जाएगा। सो f प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा fx प्लस जी एक्स, f माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा fx माइनस जी एक्स हो जाएगा, f इंटू जी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा, f बाई जी एक्स क्या होगा हमारा ये एफ एक्स बाई जी एक्स वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x जो बिलोंग करेगा x को एंड s इज द डोमेन, स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। कंसीडर लिमिट एक्स एफ प्लस माइनस जी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स,
तो दोनों को अलग अलग करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स। ये क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे एफ एक्स माइनस प्लस माइनस जी एफ सी प्लस माइनस जी सी हो जाएगा, एफ प्लस माइनस जी ब्रैकेट में सी हो जाएगा। f plus g and f minus g are continuous at point C. Similarly, we can prove f into g and f by g if g, c not equal to g are continuous at point C. Next, if f is continuous at point C, then अल्फा एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट। मतलब कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसमें किसी भी स्केलर या कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो देन इट इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस। सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी अल्फा एक्स एफ इंटू एक्स, तो अल्फा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो ये हो जाएगा अल्फा एफ सी हो जाएगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, this is a very important for solving the we test the continuity of x defined as x जो x होगा तो x जो वेरी करेगा x इज लेस देन a, और 2x जो होगा x इज ग्रेटर देन a एट पॉइंट कहाँ पे x पे हमको चेक करना है लिमिट की कंटिन्यूटी कि दिस इज फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा फाइंड द, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कोई फंक्शन है हमको चेक करना है कि वह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट कहाँ पे एक्स पे पॉइंट, उस फंक्शन एट पॉइंट उसी पॉइंट पे निकालेंगे। इस फंक्शन पे कहाँ हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। नेक्स्ट स्टेप फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ए, तो ये सिंबल होता है माइनस से दिखाएंगे हम, इसका मतलब क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा एफ एक्स रिप्लेस, तो रिप्लेस एफ एक्स बाई एफ ए माइनस एच, मतलब जो फंक्शन होगा ये एफ एक्स जो फंक्शन होगा, ठीक है, एफ एक्स को हम रिप्लेस करेंगे किस में एफ ए माइनस एच में, एंड चेंज द लिमिट, और लिमिट को किस में चेंज करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए को हम चेंज करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, लिमिट को हम फंक्शन को जो फंक्शन एफ एक्स रहेगा हमारा, जो फंक्शन हमारा एफ एक्स रहेगा उसको चेंज करेंगे एफ ए माइनस एच में, और जो लिमिट रहेगा उसको हम चेंज करेंगे एक्स टेंस टू ए लिमिट है तो एच टेंस टू जीरो लिमिट में हम चेंज कर देंगे। तो दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ए एफ एक्स, तो लिमिट को हमने चेंज किया एच टेंस टू जीरो और फंक्शन को चेंज किया हमने एफ ए माइनस एच में कर दिया। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट को भी देखेंगे। तो फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए क्या किया हमने, राइट हैंड लिमिट को लिमिट एक्स टेंस टू प्लस ए लिखा, तो प्लस ए से हो जाएगा हमारा राइट हैंड लिमिट है एफ एक्स है, तो लिमिट को चेंज किया एच टेंस टू जीरो प्लस एच, जो फंक्शन है एफ ए प्लस एच में कर दिया। तो अगर हमारा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट वेल लिमिट अब एट द पॉइंट या लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ए एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू प्लस ए एफ एक्स, और ये कहाँ पे इक्वल किसके हो जाए एफ ए के, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। आपके अगला टॉपिक है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन, मतलब कि कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए ये जरूरी है देखना। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन द फंक्शन एग्जिस्ट एट द, अगर हम इफ अवर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हो जाते हैं तो देन द फंक्शन एग्जिस्ट करेगा एट पॉइंट एक्स। द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस इन द फॉलोइंग केसेस,
अदरवाइज अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देयर आर सम केसेज। पहला केस होता है कि अगर एफ ए इज नॉट डिफाइंड, तो अगर एफ जो फंक्शन होगा एफ ए जो डिफाइन नहीं करेगा तो वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सो दिस इज द डिसकंटिन्यूस। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस ए एफ एक्स नॉट इक्वल एफ ए व्हेन बोथ एग्जिस्ट, मतलब अगर हमारा लिमिट एफ एक्स और एफ ए एग्जिस्ट करेगा बट दोनों इक्वल नहीं होगा तो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस, सो दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट not equal to limit at the point fa when both are exist, but this is not a continuous. And left hand, if left hand not equal to right hand limit, both are exist but fa exist करेगा, मतलब fa अगर exist करेगा और लेफ्ट और राइट क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, सो दिस इज ए नॉट कॉन्टिन्यूस, सो दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस। In this way, we are solving some questions. Define the continuity of the function f(x). तो हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एग्जामिन करते हैं। 2x² - 1 एट पॉइंट x हम चेक करते हैं कि दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो लिमिट x टेंस टू 3 f(x) इक्वल क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 2x² - 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा और 2 ऐड करेंगे 18 होगा, 18 में से 1 गया 17 बचा। और लिमिट एट द पॉइंट निकालेंगे, f3 निकालेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो दोनों क्या हो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे लिमिट और लिमिट एट द पॉइंट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो दिस इज द कॉन्टिन्यूअस, हैंस दिस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा हमारा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the function f defined as। तो अगर फंक्शन जो है क्या, फंक्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफाइंड है। क्वेश्चन में ऑलरेडी ये कह रहा है कि जो फंक्शन होगा क्या होगा, वह डिफाइंड होगा। तो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए साइन π/2 x प्लस ए, जो x की वैल्यू होगी लेस आर इक्वल 0 होगा। दूसरी जो है 10x माइनस साइन एक्स बाई x³ x की वैल्यू क्या होगी, ये ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा 0 से। एक्स ये क्या है, एक्स पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, इस पॉइंट पे ये हमारा कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे इट इज ए कॉन्टिन्यूस एट दिस पॉइंट। सो एफ एक्स मैंने यहाँ नोट कर लिया। सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट द पॉइंट ये सब क्या होंगे, बोथ आर इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब एक्चुअली हम यहाँ पे देखते हैं दो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए पहले हम देखेंगे जो वैल्यू रहेगी जो एक्स की, वह क्या होनी चाहिए, 0 से जो उस पॉइंट से, मतलब किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट क्या है, एक्स पे क्या है, एक्स इक्वल 0 पे है। तो अब इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो एक्स की वैल्यू होगी इस पॉइंट से क्या होगी, कम होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स की वैल्यू यहाँ 0 से कम है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पे और ये वैल्यू यूज करेंगे हम राइट हैंड लिमिट पे। तो जैसे मैंने पहले बताया है, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस एक्स टेंस टू 0 पे माइनस लगा दिया तो लेफ्ट हैंड हो गया एफ एक्स। तो फिर मैंने क्या किया, जो एक्स टेंस टू ए को रिड्यूस करते हैं एक्स टेंस टू 0 पे और एफ एक्स को रिड्यूस करते हैं 0 माइनस एच पे कर देते। तो मैंने बताया है कि लेफ्ट हैंड उसको हम यूज करेंगे। तो लिमिट एच यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 ए साइन π/2 और यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ हम क्या करेंगे, 0 माइनस एच रखेंगे, 0 माइनस एच मैंने रख दिया। और फिर लिमिट एच टेंस टू 0 ए साइन π/2 1 माइनस एच। अब यहाँ लिमिट हम रख देंगे, एच की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये डिफाइन हो जाएगा हमारा।
तो पुट h इक्वल टू 0 a साइन पाई बाई टू ए, तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू मतलब 90, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, तो 1 रख दिया, a आ गया। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने कहा है कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे इन दिस केस वह 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने ये वैल्यू लिया। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लेने पे पॉजिटिव हो गया एफ एक्स, तो x को ये लिमिट को मैंने टेस्ट डिफाइन किया h टेंस टू 0, और जो फंक्शन होगा 0 प्लस एच मैंने ले लिया, तो लिमिट h टेंस टू 0 10 0 प्लस एच हो गया। वहाँ पे जो 10x की वैल्यू क्या रखा हमने, 10x की जगह पे 0 प्लस एच माइनस साइन एक्स की जगह पे साइन 0 प्लस एच रखा, और x की जगह पे 0 प्लस एच का होल क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 10h माइनस साइन एच बाई एच क्यूब। तो यहाँ पर किसमें, साइन बाई कॉस में, साइन एच बाई कॉस एक्स, क्योंकि हमको मालूम है जो 10 होता है 10 इज द रेशियो ऑफ द साइन एंड कॉस, साइन एच बाई कॉस एच, और ये क्या होगा माइनस साइन एच हो गया एच क्यूब। दोनों का अगर एलसीएम लेके हम कॉमन लेते हैं तो दोनों में क्या है, साइन एच कॉमन हो गया हमारा, दोनों का 1 माइनस कॉस एच हो गया, और ये एच क्यूब इंटू कॉस एच हो गया। तो साइन एच यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच हो गया, एक को मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और सेकेंड को मैंने किया लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एच बाई एच स्क्वायर कॉस एच हो गया। तो इसका जो लिमिट वैल्यू रखा है इसकी वैल्यू 1 होती है, लिमिट एच टेंस टू 0, और 1 माइनस कॉस एच की वैल्यू होती है, ये फार्मूला होता है हमारा 1 माइनस कॉस एच इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 होता है। ये हमारा यहाँ पे आया 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूला आ रहा है हमारा वहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब 2 नहीं रहेगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 लगे, जब यहाँ 2 नहीं रहेगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, जो कि मैंने यूज किया यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या होगा साइन एच बाई 2 बाई एच बाई 2, क्योंकि मैं एच बाई 2 यहाँ पे है तो एच बाई 2 मैंने यहाँ पे लिया और स्क्वायर कर दिया। और फिर यहाँ पे क्या था, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया ये 2 जो ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ एक्चुअली 4 बचेगा हमारा, तो 4 बचेगा, 2 यहाँ पे था 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, और लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एच हो जाएगा। तो यहाँ 1 रखा और यहाँ 1/2 हो गया, और फिर फाइनली क्या बचा 1/2 आ गया। और हमको मालूम है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये हो गया, तो दोनों को फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को मिला दिया हमने, तो क्या हो गया फर्स्ट की वैल्यू क्या थी, लेफ्ट फर्स्ट में क्या था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, फर्स्ट में जो था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों क्या है हमारे इक्वल हैं। क्यों, बिकॉज इन क्वेश्चन वी से दैट दे आर द कॉन्टिन्यूअस। तो दोनों को जब मिलाया तो एक की वैल्यू ए थी, ये हो गया हमारा 1/2, वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया 1/2 हो गया। इम्पॉर्टेंट इसका पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि मैंने यूज किया है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है ई होती है, या अदरवाइज लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू भी हमारे ई ही होती है। थर्ड, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग बेस ए 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है लॉग ए बेस ई होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फोर्थ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए पे एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है लॉग ए होती है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई पे एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है लॉग ए, और लॉग ई ये दोनों बेस इक्वल हैं, दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाते हैं। और लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस एक्स रेज पावर क्या है, यम है, माइनस वन बाई एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यम होती है। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एक्स बाई एक्स पे पावर यम की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एंड नेक्स्ट जो है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पे एन माइनस ए पे एन बाई एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या होती है, एन ए रेज पावर एन माइनस वन, ये होती है। तो ये हमारे कुछ फार्मूले थे, हम यूज करेंगे डायरेक्टली। नाउ देयर डिस्कस अबाउट द सम एक्सपेंस एक्स प्लस क्लास में हमने डिस्कस किया है कि बाइनोमियल थ्योरम, उसमें हमने सारे जो एक्सपेंशन है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। उसी में थोड़ा सा और बचा है, x प्लस ए पे पावर n जो होगा x पे n प्लस एन सी वन, एक्स पे n माइनस वन ए प्लस एन सी टू, एक्स पे n माइनस टू ए स्क्वायर प्लस एन सी थ्री, एक्स पे n माइनस थ्री ए क्यूब प्लस डॉट डॉट ए पे n होता है। ई पे एक्स का जो एक्सपेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग लिमिट। ई पे एक्स का एक्सपेंशन होता है वन प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ई पे माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट। तो ये पावर वाले एक्स हैं सबके निगेटिव हो गए हैं। ए पे एक्स का जो एक्सपेंशन होगा वन प्लस एक्स लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू लॉग ई ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 लॉग वन प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स पे फोर बाई फोर प्लस डॉट डॉट साइन एक्स का जो एक्सपेंशन, दिस टू टर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। दिस इज द टेक्नोमेटिकल पार्ट। साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स पे पावर फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव प्लस डॉट डॉट। कॉस एक्स का एक्सपेंशन जो होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल फोर प्लस डॉट डॉट। और टेन एक्स का जो एक्सपेंशन होगा हमारा एक्स एक्स प्लस वन बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस टू बाई फिफ्टीन एक्स फाइव प्लस डॉट डॉट। ये कुछ एक्सपेंशन थे और फिर कुछ क्वेश्चन हम लगाते हैं इसी सीक्वेंस में। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, मतलब कि चेक करना है क्या फंक्शन कंटिन्यूट होगा एक्स नॉट इक्वल टू जी टू एंड एक्स। तो पहले एट द पॉइंट निकालेंगे तो एफ टू, तो यहाँ पे दिया है एफ टू, वैल्यू ऑफ एफ टू कितना होगा, फोर होगा। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस, तो राइट हैंड लिमिट निकालना किस पे, एट द पॉइंट टू पे निकालना है, तो मैंने पॉइंट लेते हैं हम एफ एक्स। तो फिर उसको क्या करते हैं, लिमिट को जो एक्स टेंस टू टू है उसको इंटरचेंज करते हैं एच टेंस टू जीरो, और जो फंक्शन है टू प्लस एच के फॉर्म में हो जाता है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो फंक्शन है यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये लेंगे हम, तो एक्स की वैल्यू हमने लिया है टू प्लस एच, तो यहाँ पे टू प्लस एच का स्क्वायर माइनस फोर, और नीचे एक्स एक्स माइनस टू है तो ये टू प्लस एच हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, उसको ब्रेक कर दिया हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू है भी, तो ये फोर हो गया, माइनस फोर, ये फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, एच बचेगा। यहाँ से एच कॉमन लिया हमने, एच प्लस फोर बाई एच, एच एच कैंसिल हो गया, और लिमिट जब रखेंगे एच टेंस टू जीरो, यहाँ जीरो रखेंगे तो यहाँ पे एच प्लस जीरो मतलब कि ये फोर ही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम, तो लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस लिया, सो दिस सो इज दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, लिमिट को चेंज किया हमने एच टेंस टू जीरो, और फंक्शन को टू माइनस एच में चेंज कर लिया। फिर यहाँ पे जो फंक्शन है एक्स की जगह टू माइनस एच कर लिया हमने, और फिर सॉल्व किया, तो यहाँ पे ये वैल्यू आई, और फिर यहाँ पे टू और टू क्या हो गया, यहाँ पे टू और टू कैंसिल हो गया, बचेगा माइनस एच बचेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और दोनों में एच कॉमन लिया, एच माइनस फोर हो गया, माइनस ये कैंसिल हो गया, और जब लिमिट ये जीरो जीरो हमने रखेंगे, ये जीरो रहेगा ही हमारा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर हो गया। सो इन दिस केस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, एंड लिमिट एट द पॉइंट इक्वल फोर क्या आ गया, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एट पॉइंट किस पे 2, इस पे क्या होगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। नाउ वी सी सम क्वेश्चन। इफ द फंक्शन if the following function f(x) is continuous at x equal to find the value of, मतलब कि एक फंक्शन है हमारा अगर कंटिन्यूस है, ठीक है, तो एक की वैल्यू निकाल एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन, अदरवाइज वह फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा, वहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसकी वैल्यू हमको निकालनी रहेगी। So there are three part, first part, second part, third part. First part, the value of x is less than limit at the point x less than 0 equal to and this. So less than 0, it means this is the left hand limit, value of the left hand limit at the point, or this is the value x more than x right hand limit, ये वैल्यू होगी राइट हैंड लिमिट की होगी। सो लिमिट एट द पॉइंट f0, तो f0 मतलब क्या, x की वैल्यू 0 लेंगे हम तो आ जाएगा हमारे, बट जब लेफ्ट हैंड लेंगे हम तो ऊपर वाला लेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लेने के लिए हम पीछे आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। एच टेंड्स टू 0, फंक्शन को चेंज किया 0 माइनस एच, और फिर कहाँ पे ऊपर वाला हमको लेना है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4, और यहाँ पे एक्स है, एक्स मैंने जगह पे क्या रखा 0 माइनस एच रख दिया, और नीचे एक्स स्क्वायर है तो 0 माइनस एच का स्क्वायर कर दिया। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4 माइनस एच, तुमको मालूम है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस पे माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4h हो गया बाई एच स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस 4h, अभी हमको फार्मूला मालूम है हमारा यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2h इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे 2 को हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 2h बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। 2 को बाहर कॉमन ले लिया हमने, साइन 2h और बाई यहाँ पे 2h कर दिया और इंटू 4 मतलब मल्टीप्लाई कर लिया। हमको ये फार्मूला मालूम है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और ये 2 है और ये 4 बचा यहाँ से तो बच गया 8। ऐसे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने कहा है राइट हैंड लिमिट एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वैल्यू लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस लिया, तो राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस लेंगे हम एफ एक्स, फिर लिमिट को चेंज करेंगे एक्स टेंड्स टू 0 और फंक्शन को 0 प्लस एच में कर लिया हमने। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और 0 प्लस एच ये किया, फिर नीचे हमारा क्या है स्क्वायर रूट में है, तो इसको रसलाइज करने के लिए हम प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हम, तो रूट एच और ये सेम वैल्यू हो गई। और ये एक फार्मूले में आ गया हमारा, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी, ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग हमने ब्रेक कर लिया। तो ये इसका ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा 16 प्लस रूट एच हो जाएगा, और माइनस करेंगे और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर रूट एच बचा तो रूट एच क्या होगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर पर बचेगा और न्यूमरेटर बचेगा। लिमिट रखेंगे एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे एच की वैल्यू 0 रख दिया हमने, क्या किया एच की जो वैल्यू होगी वहाँ 0 हमने रखा, 0 हो गया 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 हो गया। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स, जो फंक्शन है क्या है हमारा कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट किस पे 0 पे, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट द पॉइंट क्या इक्वल होने चाहिए। सो वैल्यू आ गई किसकी ए की वैल्यू आ गई 8 आ गई। इसी लास्ट क्वेश्चन हमारा पड़ता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड अहेड, मतलब कि फंक्शन डिफाइंड है और हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जो फर्स्ट है हमारा 5 है, सेकेंड 5 है, कंडीशन क्या है एक्स की वैल्यू होनी चाहिए लेस आर इक्वल टू, सेकेंड जो है हमारा ए एक्स प्लस बी है ये, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल 10 है तो 21 होना चाहिए। इज कॉन्टिन्यूस
जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट किस पे, टू पे। हम टू पे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ कहाँ पे है। तो एफ टू की वैल्यू अगर टू लेंगे हम, तो यहाँ पे कह रहा है एक्स की वैल्यू टू लेने पे फंक्शन कितना आएगा, तो फाइव आएगा, तो फाइव आ गया हमारा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ पे एक्स हमारा है, तो यही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू एफ एक्स टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच, ये कितना आ गया, फाइव आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे हम, तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे टू से क्या है, बड़ी है, तो हम यहाँ पे टू के लिए राइट हैंड लिमिट ये लेंगे हम। लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो ए, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, टू प्लस एच लिखेंगे। यहाँ टू प्लस एच हो गया, प्लस बी हो गया। तो एच की वैल्यू कहाँ पे, एच की वैल्यू हम रखेंगे जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो बचेगा टू ए प्लस बी हो गया, ये हो गया। ठीक। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, किस पे, टू पे। तो देयरफॉर, तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट द पॉइंट दोनों इक्वल होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल होगा। तो टू एक्स टू ए प्लस बी इक्वल क्या हो गया, फाइव होगा। दिस इक्वेशन फर्स्ट। नाउ कंटिन्यूटी फंक्शन एट एक्स इक्वल टेन। अब एक्स इक्वल क्या है, टेन पे भी हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे क्या होगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो F10 पे अगर हम देखेंगे तो F10 ये ग्रेटर आर इक्वल क्या है, यहाँ पे 10 है, तो F10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा 21। और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे इसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के लिए यहाँ पे हम इसके लिए क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स लेने के लेंगे हम, जब लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टेन एफ एक्स जो होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टेन माइनस एच हो गया। और फिर यहाँ पे हम लेंगे तो जीरो ए टेन माइनस एच, और एच की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख देंगे, तो जीरो हो जाएगा, टेन एच टेन ए प्लस बी हो जाएगा हमारा। राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू टेन प्लस एफ एक्स एच टेंस टू जीरो एफ टेन प्लस एच, तो उसकी वैल्यू क्या 21 है ही। Since function is continuous, since the function is continuous at x equal 10 पे, तो hence 10a प्लस बी, हैंस 10a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, तो कह रहा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस होगा, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। तो फंक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, 10a प्लस बी 21 हो गया। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व किया हमने, ये तो हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड था। बी और बी क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए हमने, कैंसिल हो गया, 10 में से 2 गया, माइनस 8 बचा, और यहाँ पे माइनस 16 बचा। ए की वैल्यू 2 आ गई, फ्रॉम फर्स्ट में रखा ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आ गई 1 आ गई। इसी प्रकार आपको कुछ असाइनमेंट, कुछ वर्क है जो मैंने दिया है कुछ। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन यू सॉल्व एट होम। क्या रहा है, कुछ क्वेश्चन है आप लोग करने हैं। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, इसका क्या है, 2x, जिस पे कंडीशन है एक्स की वैल्यू लेसर देन जीरो होनी चाहिए, जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो से 1 वेरी करनी चाहिए, 4x है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट एफ इज डिफाइंड, एफ डिफाइंड है, एफ एक्स की वैल्यू होगी ए एक्स प्लस वन थ्री, जो बी एक्स प्लस थ्री है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 से ज़्यादा होगी। इज कॉन्टिन्यूस एट थ्री, क्या वजह, इज कॉन्टिन्यूस है किस पे, एट थ्री पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चेक एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, या एग्जामाइन कॉन्टिन्यूटी, एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस
4x plus 3 by x square minus 1 for x not equal to 1 minus 1 for x equal to 1. So solve the following question. If any doubt then you ask next question. एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसिबिलिटी, कि डिफरेंसिबिलिटी क्या होती है. सो